Hello everyone, this is Priyanka Sharma. I am Company Secretary by profession. Today, we will be discussing about FEMA, that is Foreign Exchange Management Act 1999. This act has specifically replaced FERA Act 1973, which was a more restrictive one. When we talk about FEMA, guys, what we understand from the name itself, we understand that FEMA is applicable on certain transactions which takes place between India and any foreign countries, right? So there itself FEMA is applicable. In common parlance, we can understand that FEMA is not for common people, right? So when did FEMA was passed by the parliament? On 29th day of December 1999, FEMA was passed by the parliament. Today we'll be discussing about some important definitions before going into the depth of this specific act, because this act is so wide. When we were in finals, whether it may be CA or CMA or CS, whatever, this chapter was a huge chapter. But for your PSU level exams, for your banking level exams, you don't need to go into the depth of this chapter. You need to understand certain basic concepts. Questions will be definitely framed from the definition itself, because definition is also a very, kind of complicated one, right? So we will be beginning with the definition today, and thereafter we will be doing certain other provisions like capital account transactions, current account transactions, which transactions are prohibited, which transactions requires approval of which authorities. So these things we are going to develop later on. Today, when I am discussing about certain topic, you need to learn it up. In case if you are facing any issues, if you are facing any problem, just drop down the comment in the comment section, or you have my Telegram ID, that is @CSAshpri. You can directly text me there. You can text to my staff. She'll be coordinating with me, and definitely I'm going to answer each and every queries of yours. Okay, so now guys, beginning with the definition portion that is covered under section 2 of the FEMA. When we talk about certain definition under this act, this means that these definitions are restricted specifically to this act, right? Maybe person resident in India have certain other meaning in terms of income tax act. Under companies act, it might have separate meaning, but for the purpose of income tax act, when we are discussing about for the purpose of FEMA act, Foreign Exchange Management Act, when we are discussing about certain definition, we are specifically concerned about this specific act and not other act. Fine. So coming to the first important definition, that is the definition of person. Section 2 subsection U of the FEMA Act deals with person who are regarded as person under FEMA Act. You may say that it may be an individual or other than individual. Just learn like this. या तो इंडिविजुअल होगा भैया, इंसान होगा, या फिर इंसान जो चला सकता है वो होगा. या तो इंडिविजुअल होगा, क्या चला सकता है इंसान, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी तरह का एसोसिएशन आप ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लो, रजिस्टर्ड फर्म्स ले लो, कंपनीज ले लो, एनीथिंग यू टेक. So these persons are divided into two categories, that is one individual and other than individual. Why I am saying this? When you study from here itself that a person is categorized into two following subsections, two following subparts, that is individual and other than individual, then in further when we are going to cover up the person resident in India definition, you will better understand that. So fine. तो ये हो गया सेक्शन 2. सबसेक्शन यू जो है वो डेफिनेशंस के इसके बारे में बताता है, पर्सन के बारे में बताता है. और पर्सन he may be an individual and any other person other than individual. Fine. Now coming to section 2 subsection V. This is for individual, and the second part is for other than individual, persons other than individual. Fine. This
subsection, this section is divided into 4 clauses. The first clause is for individual, second, third, fourth clause are for other than individual. That is, it may be a firm, it may be a company, any other association. Fine. So you should understand this. The residential status under the terms of FEMA may change. It's not necessary that it will change. It may change in case of individual, but it will never change in case of other than individual. Why so? अगर एक इंसान इतने दिन, एक स्पेसिफाइड टाइम है, उतने दिन तक अगर वो इंडिया में नहीं रहता है या रहता है या रह करके भी बाहर चला जाता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसके लिए? कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर वो बाहर चला जाता है, उसने उतने दिन बिताए हैं इंडिया में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर वो बाहर चला जाता है तो भी उसको रेसिडेंट नहीं माना जाता है, उसको PROI बोला जाता है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्लियर है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहा जाता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है किसी भी इंडिविजुअल का चेंज हो सकता है, इट मे चेंज, बट इन केस ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, वहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज नहीं होता है। कोई भी फर्म अगर कहीं इनकॉर्पोरेट होती है बाहर में, या फिर यहाँ इनकॉर्पोरेट होती है, बाहर का कोई बंदा चलाता है यहाँ या उस फर्म को, तो उस केस में उस फर्म का एक्सटिंग्विशमेंट हो सकता है, उसको मतलब अपने उसको वाइंड अप कर सकते हैं, सब कुछ उसको खत्म कर देते, दैट इज एक्सटिंग्विशमेंट, दैट इज नॉट द चेंज इन द रेसिडेंशियल स्टेटस। सही है? तो ये चीज आप समझना, इंडिविजुअल के केस में ही क्या होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस का चेंजेस आएगा। अब यहाँ पर 2 कंसेप्ट है, एक होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और एक होता है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया किसको बोलेंगे? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑब्वियसली जो इंडिया में रहा हो उसको बोलेंगे, और जो इंडिया में नहीं रहता हो, जो बाहर रहता हो, उसको बोलेंगे। सही है, ये तो बेसिक सी चीज है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ का भी आदमी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहा जा सकता है। कब कहा जाएगा? फर्स्ट थिंग, पहली चीज, हम क्लॉज 1 के अंदर में जा रहे हैं। क्लॉज 1 के अंदर में भी 2 सब क्लॉजेज हैं, क्लॉज A एंड क्लॉज B। क्लॉज A जो है, A कहता है कोई भी इंसान, एनी पर्सन, कौन? कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल। यहाँ पर पर्सन का मतलब हो गया कोई भी इंडिविजुअल। अगर इंडिया में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, अभी अप्रैल चल रही है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ का क्या हो गया? लास्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया यहाँ का 22-23। 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023। अगर वो इंसान, अगर वो इंडिविजुअल लास्ट प्रीसीडिंग यानी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर में मोर देन 182 डेज, मोर देन, जस्ट गौर करिएगा इन बातों को कि मोर देन है, इनकम टैक्स नहीं है ये, दिस इज नॉट इनकम टैक्स। वहां पर 182 डेज और मोर था, यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर पढ़ना 183 डेज और मोर, 183 डेज और मोर, उससे ज्यादा अगर रहा हो तो एक बार के लिए हम समझ जाते हैं कि भैया वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, आगे भी हमें बहुत सारी चीजें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर उसने वो रहा हो, क्लॉज A के अंदर में रहा हो, इफ यू हैव लिव्ड इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर, तो वो ट्रीट किया जाएगा एक बार के लिए पर्सन। अगर नहीं रहा हो तो डेफिनेटली वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा ही ना। तो ये चीज क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तो एक बार के लिए बन गया, लेकिन 182 डेज रहा है वो इंडिया में, 182 डेज से ज्यादा रहा है वो इंडिया में। देखिए 182 डेज नहीं, 183 डेज वो रहा है इंडिया में, लेकिन वो किसी 4 पर्पस के लिए, देयर आर 4 स्पेसिफाइड पर्पसेस जिसके लिए वो क्या चला गया, वो बाहर चला गया। पहली चीज, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, और किसी अनसर्टेन पीरियड के लिए बोला मैं अपने देश में आना ही नहीं है, मुझे यहाँ की गंदगी, यहाँ के लोग मुझे पसंद ही नहीं है, यहाँ का कल्चर मुझे नहीं पसंद है, वॉट एवर में भी वो अनसर्टेन पीरियड के लिए कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा। अगर ये 4 पर्पस के लिए चला गया ना वो,
तो उसको बोल देंगे तुम अगर दगाबाजी करोगे हमसे तो हम भी तुमको बोलते हैं कि तुम अब हमारे देश के रेसिडेंट नहीं हो। भले ही तुम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर में तुम कितने दिन रहे हो, मोर देन 182 डेज रहे हो, स्टिल व्हाट यू आर, यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या क्रक्स है, यहाँ पर है कि ये तो उसके साथ जाति हो रही है। अरे भैया जाति नहीं हो रही है उसके साथ में, उसके साथ में कुछ नहीं हो रहा, उसके साथ में अच्छा हो रहा है। अगर वो यहाँ पर भी रेसिडेंट हुआ, वहां पर भी रेसिडेंट हुआ, तो वो क्या दोनों कंट्रीज के लॉ फॉलो करेगा? क्या वो दोनों कंट्रीज के लॉ तो फॉलो करने उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो फिर वो क्या बिजनेस करेगा, क्या एम्प्लॉयमेंट करेगा, क्या वोकेशन करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि इफ यू आर गोइंग फॉर दीज 4 स्पेसिफाइड पर्पसेस, देन you will not be regarded as a resident in India, you will be regarded as a resident of any foreign country wherever you are approaching towards. लेकिन अगर रहा हो और वो देश छोड़कर जा रहा हो, मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हमें देखना ही पड़ेगा 182 डेज से ज़्यादा रहा हो, लेकिन वो छोड़कर जा रहा है किसी और पर्पज़ के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने जा रहा है, उसको यहाँ की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, वो बाहर पढ़ने जा रहा है, कोई बात नहीं, यू विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। इस साल करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, यानी 23-24 के अंदर में आप रेसिडेंट ट्रीट किए जाओगे। वाई सो? क्योंकि आप लास्ट ईयर रहे हो यहाँ पर और आप वो स्पेसिफाइड पर्पसेस के अंदर में आते नहीं हो, देन यू विल बी रिगार्डेड एज रेसिडेंट। आई गेस ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आई है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर जैसे आज मैं यहाँ लास्ट ईयर में यहाँ पर 182 डेज से ज़्यादा रह चुकी हूँ इंडिया में। अब मुझे क्या है, मुझे बाहर ना फॉरेन में नौकरी मिल गई, आई गॉट अ जॉब एंड आई एम प्लानिंग टू लीव इंडिया। सो जॉब मिल गया मुझे, तो किस दिन से माना जाएगा कि मैं रेसिडेंट नहीं मानी जाऊंगी यहाँ की? क्योंकि ये तो स्पेसिफाइड पर्पसेस के अंदर में आता है। ऑन द वेरी डे, जिस दिन मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, ऑन द वेरी डे सरकार ने बोला कि तुम हमारे देश के वासी नहीं हो, तुम हमें दगाबाजी करके जा रहे हो यहाँ से। तो बस उसी दिन से, सेम डे से आप रेसिडेंट नहीं ट्रीट किए जाओगे। जिस दिन से आपने इस सरहद से बाहर अपना कदम रखा, उस दिन से आप रेसिडेंट नहीं ट्रीट किए जाओगे। सो आई गेस ये चीज़ सही है कि आप लोगों को समझ में आ रही है। और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 182 डेज से ज़्यादा अगर वो रहा नहीं है, तो ऑब्वियसली यार उसमें आगे कुछ पूछने की ज़रूरत, लेकिन रहा है तो अपने को क्या देखना पड़ेगा? अपने को आगे की चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो रहा है और रह रहा है, एट प्रेजेंट भी रह रहा है, तो भैया प्रेसिडेंट, तुम रेसिडेंट हो भैया, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रह रहा था, रहा है, 182 क्या बोलो, वो 190 दिन रहा है, चलो 190 डेज रहा है, ठीक है, 365 डेज रहा है, कितने दिन भी रहा हो, लेकिन वो किस पर्पस के लिए जा रहा है? वो जो है वो वोकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, अनसर्टेन पीरियड के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जा रहा है। तो सर गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं बाबू, तुम जाओ, तुम क्या करेगा, तुम अब से वहाँ का लॉ फॉलो करेगा, यहाँ का लॉ फॉलो करने का तुमको ज़रूरत नहीं है। आई गेस इट्स क्लियर। और अगर नहीं रहता है तो भाई सवाल रेसिडेंसी की आती नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिटीजनशिप और रेसिडेंस का जो डेफिनेशन है, रेसिडेंट्स जो होते हैं, सिटीजन और रेसिडेंट में बहुत फ़र्क होता है, दोनों सेपरेट कंसेप्ट है। जब हम सिटीजन की बात करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें रेफ़र करना पड़ता है, किस किस को हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। यहाँ पर क्या है, रेसिडेंस जो है वो आपका अलग अलग एक्ट के बेसिस पे होता है। डिफरेंट एक्ट्स के अंदर में डिफरेंट प्रोविजंस दिए हुए हैं। लाइक फॉर इनकम टैक्स, इन केस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इट्स स्पेसिफाइड दैट इफ अ पर्सन स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 180, और उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, RNOR है, ROR है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। कंपनीज एक्ट के अंदर में भी है, रेसिडेंट डायरेक्टर किसको बोला जाता है, तो वहाँ पर चीज़ें अलग है। आई गेस दिस इज वेरी क्लियर टू यू। Now coming to the second part of this schedule, specifically this clause, that is 1B. पहले हम क्या बात कर रहे थे, जो इंडिया में रह रहा है, जो हमारे देश के जो वासी हैं, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो इंडिया में आए हैं बाहर से।
उसके बारे में बात करेंगे, जो कि आपका सब क्लॉज बी के अंदर में लिखा हुआ है। पहला जो क्राइटेरिया है, द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एग्जैक्टली सेम एज वॉज इन क्लॉज ए, दैट इज he must have stayed in India for more than 182 days during the preceding financial year, then he will be regarded as person resident in India in the current financial year. सही, 22-23 में एक 182 डेज से ज़्यादा अगर रहा हो तो क्या माना जाएगा, रेसिडेंट कब माना जाएगा, 23-24 में रेसिडेंट माना जाएगा। अब कब माना जाएगा, वहां पर क्या था, पहला क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई आपने कर दिया तो हमें दूसरा चीज क्या देखना है, हमें दूसरा चीज देखना है कि भैया आप इंडिया में है ना, अभी एट प्रेजेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप रेसिडेंट हो। लेकिन अगर आप 4 पर्पस के लिए अगर बाहर जा रहे हो, इफ यू हैव लेफ्ट इंडिया, देन क्या हो जाओगे आप, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। यहां पर बोल रहा है कि अगर आप 182 डेज से ज्यादा रहे हो इंडिया में, लेकिन सिर्फ 4 पर्पस के लिए अगर रहे हो तो ही आपको रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज आपको रेसिडेंट नहीं ट्रीट किया जाएगा। कौन सा 4 पर्पस, वही वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस एंड फॉर अनसर्टेन पीरियड। इस 4 पर्पस के लिए अगर आप इंडिया आ रहे हो और लास्ट ईयर आप 182 डेज से ज़्यादा रहे हो इंडिया में, तो उस केस में आप रेसिडेंट माने जाओगे। और दूसरे पर्पस के अंदर में यू विल नॉट बी रिगार्डेड एज, अगर आप एजुकेशन के लिए यहाँ पर आ रहे हो इंडिया में, इंडिया के टूरिस्ट बन करके आ रहे हो, ठीक है, या फिर आप बिजनेस के लिए आ रहे हो इंडिया में, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी, ये इंडिविजुअल के लिए है, अदर देन इंडिविजुअल के लिए नहीं है। देन 4 पर्पस देखा जाएगा। आप पहले देखो, फर्स्ट क्राइटेरिया 182 डेज वाला है, सेकेंड क्राइटेरिया ये 4 पर्पस के लिए आ रहे हो तभी रेसिडेंट माने जाओगे, अगर नहीं आ रहे हो तो नहीं माने जाओगे, आप बाहर के रेसिडेंट ही माने जाओगे। क्लियर है सबको। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जब पर्सन रेसिडेंट, जब यहाँ के पर्सन की बात हो रही थी, तो कब से माना जाएगा कि वो पर्सन रेसिडेंट, जिस दिन वो इस इंडिया को छोड़ करके गया उस दिन से माना जाएगा, सही था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हियर इट इज स्पेसिफिकली सेड कि अगर आप आए हो लास्ट ईयर तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर से आप रेसिडेंट माने जाओगे, ना कि जिस दिन से आए हो उस दिन से। आई गेस ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर से आप रिकॉर्डेड वापस से वीडियो देखिए, वापस से आप मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगी। अब हम आते हैं क्लॉज 2 के अंदर में। क्लॉज 2 कहता है कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड होता है कहाँ पर, हमारी कानून, हमारी सरकार के अंदर में, हमारे इंडिया के अंदर में अगर रजिस्टर्ड होता है तो क्या माना जाएगा, वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। कोई भी एजेंसी, कोई भी ब्रांच, बाहर की बहुत सारी फॉरेन कंपनीज होती हैं, अपनी ब्रांचेस यहाँ पर खोल कर के रखी हैं, ठीक है, और अपनी बहुत सारी एजेंट्स वगैरह अपॉइंट करके रखी हैं यहाँ पर, लेकिन जो ओनरशिप और जो कंट्रोल है वो कहाँ पर है, वो बाहर है, फॉरेन में है। अब फॉरेन में ये नहीं है कि फॉरेन में बांग्लादेश नहीं आता, बांग्लादेश भी आता है, ठीक है, तो बाहर है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो उस केस में क्लॉज वो क्या हो जाएगा, वो माना जाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्लॉज 4 ये बोलता है कि हमारी कोई कंपनी है या हमारी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी एसोसिएशन है, वो कहाँ है, कोई भी पर्सन है, वो बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन कंट्रोल कहाँ है, मेरी, मैं कौन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ से बैठ करके मैं कंट्रोल कर रही हूँ वहाँ पर, देन दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज पर्सन। यहाँ पर झोल क्या है, यहाँ पर आपको इस इंडिया के कानून के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा, आपको वहाँ के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ भी यू विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड देयर ऑल्सो यू विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन रेसिडेंट इन दैट कंट्री एज वेल। तो यहाँ पर दिमाग का लगाना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया सेक्शन 2 सबसेक्शन वी। इसके अंदर में 4 क्लॉजेस होते हैं। पहला क्लॉज क्या है, पहला क्लॉज ओनली फॉर इंडिविजुअल है, जो कि 2 क्लॉजेस के अंदर में डिवाइडेड है। पहला क्लॉज फर्स्ट 1A जो है वो कहता है क्या, वो कहता है कि कोई भी पर्सन, हमारा जो पर्सन है वो रेसिडेंट रहा हो इंडिया में, 182 डेज से ज़्यादा रहा हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, और अभी भी रह रहा हो तो उसको क्या माना जाएगा, उसको रेसिडेंट करंट फाइनेंशियल ईयर में हम ट्रीट करेंगे। अगर वो नहीं रहा हो तो उसको क्या ट्रीट करेंगे,
पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ट्रीट करेंगे। लेकिन रहा हो पर 4 पर्पस के लिए अगर वो इंडिया से बाहर छोड़कर चला गया हो, ऑन द सेम डे उसकी रेसिडेंसीशिप जो है वो चली जाएगी और वो बाहर का रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। क्लॉज 1B के अंदर में जब हम आते हैं, बोलते हैं कि जब बाहर से कोई इंसान, कोई व्यक्ति आता है, कोई इंडिविजुअल आता है यहाँ पर किसी 4 पर्पस के लिए और 182 डेज से ज़्यादा रहता है यहाँ पर, देन what will happen, that person if he comes for 4 specific purpose, that is vocation, employment, business and what, uncertain period, then he will be treated as a person resident in India, and any other cases में he will not be treated as person resident in India. From when? From the next financial year, that is in the current financial year. ठीक है। Clause 2 क्या कहता है? Clause 2 talks about any person other than individual who is registered in India, who is registered under our law, then that will be treated as a person resident in India. Coming to clause number 3, it talks about that any agency or branch opened by any foreign country in India, but the ownership and control still exist with whom? With the foreign country itself, then that will be treated as a person resident in India. Now, any Indian who opens his branch office or any agency appoints his agent in any other country apart from India, then the ownership actually lies with whom? The Indian. Then that will be treated as that agency will be treated as a person resident in India as well as a person resident outside India. I guess this video was very fruitful for you. In case of any queries, just drop down the comments. I am going to answer each and every question of yours. Bye bye. Good night. Take care.